Hello students, how are you? We are discussing dissolution of partnership firm, and today I am going to take up with you a different situation where partners' capital accounts are fixed. When the capitals are fixed, the partners prepare their capital accounts as well as current accounts. So today the situation which is going to be taken up is that how the accounts of the partnership will be closed when the dissolution takes place, when the partners are maintaining fixed capital accounts. All other things are the same. You are given the balance sheet of the firm before dissolution, and all other adjustments of the similar nature are given almost of the same times, but I have taken a little different adjustments with this. So I will explain to you how to close the books of the firm when capitals are fixed, or when there are capital accounts as well as the current accounts. Here is a special problem for you. Please read it along with me and try to understand the concepts involved, how such a situation is to be dealt with. So here is the partnership firm of three partners, Sonu, Preeti and Neetu. Their balance sheet is here, their capitals. Sonu, Preeti and Neetu, they have these capitals, total 1,50,000, and then their current accounts are Sonu is 5, Preeti is 7. What about the third current account? It is not on here. It is on the asset side because Neetu has a debit balance. Sonu and Preeti has credit balances. Neetu has a debit balance, and the current accounts can have a debit balance, but capital accounts always have a credit balance. Right? Then we have workers' compensation fund, that is 10,000, and sundry creditors are 8,000, and the total is 1,80,000. This is the liability side. Did you notice that there are capital accounts and there are current accounts? That is the only difference between this question and this problem and other where the capitals are fluctuating. So here are buildings, investment, stock and sundry debtors 22, then their provision for doubtful debts is 2,000, that is 20, right? Then we have cash in hand is given to 12,000, and Neetu's current account is a debit balance, I have already told you. Here are a few adjustments. They dissolve the firm and the buildings are realized 75,000, investments are taken over by Sonu for 18,000. These investments are how much? 30,000, and they are taken over by Sonu for 18,000. Stock and debtors are realized at 38,000 and 19,000. This is the stock realized is stock and debtors are realized at 38,000 and 19,000. Debtors at 19,000 and stock at 38,000. Right? So these are the disposal of the buildings, disposal of investments, disposal of stock and debtors, and the amounts are given to us. This is very simple. Now there are the other 3 or 4 adjustments. There was an outstanding bill for repairs for rupees 6,000. What is this? There was an outstanding bill for repairs for rupees 600 which has not yet been paid. What does it mean? This is unrecorded liability. It yet remains to be paid. It was incurred but has not been paid. So it is yet to be paid. Then an old customer who was written off as bad paid rupees 1,000. There was a customer, we thought that he has left the country. He is not traceable. तो हमने इसको राइट ऑफ कर दिया था, बैड डेट मान लिया था, लेकिन वो एक दिन आ गया, पैसे देने आ गया 1,000 रुपया. वी वर वेरी हैप्पी, हमने उसे 1,000 रुपया ले लिया. दिस इज ओल्ड कस्टमर. ओके, ये इन डेटर्स में इंक्लूडेड नहीं था,
ये वाले डेट कस्टमर जो है हमारे, इसमें ये इंक्लूडेड नहीं था। क्यों हमने इसको बैड डेट मान लिया था, इसमें से निकाल दिया था, अब वो पैसे देने आ गया। वेरी गुड। सो एन ओल्ड कस्टमर हु वाज रिटन ऑफ एज बैड paid rupees 1000. Good. Then the realization expenses, another new thing I have introduced in this, that is realization expenses हैं 500 के। ये दिए तो है सोनू ने, लेकिन बियर किया है प्रीति ने। सोनू पेड एंड प्रीति बोर्न, और बिजनेस फर्म ने इसमें कुछ नहीं किया, फर्म का कुछ नहीं है। जो उनकी पार्टनरशिप फर्म है उसने ना बियर किए ना पे किए। जब फर्म बियर करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, जब पार्टनर बियर करता है तो पार्टनर डेबिट होता है। दूसरी बात, जब फर्म पे करती है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब पार्टनर पे करता है तो पार्टनर क्रेडिट होता है। गॉट इट? इसी तरह ये रूल है एक्सपेंसेस का। फर्म बियर करे तो रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर बियर करे तो पार्टनर डेबिट, फर्म पे करे तो कैश क्रेडिट और बैंक क्रेडिट, और पार्टनर पे करे तो पार्टनर क्रेडिट। सो ये इसका ध्यान रखेंगे जब करना। और लास्ट है एक क्रेडिटर, वन क्रेडिटर फॉर 2000 इज डेड। इसकी मृत्यु हो चुकी है, क्रेडिटर मर गया बेचारा, तो अब इसके पैसे देने नहीं है। अदर क्रेडिटर जो थे वो 10% लेस, वो मान गए कि हम आपको 10% छोड़ते हैं। ये हमारे क्रेडिटर हैं कितने के? 8000 के। इनमें से 2000 के क्रेडिटर एक की डेथ हो गई, बाकी कितने बचे? 6000। 6000 जो है वो हमारे से 10% कम लेने को तैयार है, 10% लेस। 6000 का 10% कितना होगा? 6000 का 10% होगा 600। तो 6000 में से अगर 600 निकाल दें तो बाकी बचा 5400। सो हमें क्रेडिटर्स को पे कितने करने पड़े? ओनली 5400। और ये वर्कर्स कंपनसेशन फंड, आप देखो हमने ये सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, ये वर्कर्स कंपनसेशन फंड का कोई क्लेम नहीं है, देयर इज नो क्लेम। तो ये वर्कर्स कंपनसेशन फंड सारा जो है ये पार्टनर्स के पास चला जाएगा। अब जब हमें कैपिटल्स आर फिक्स्ड ये दिए हुए हों तो हमें करंट अकाउंट अलग बनाने हैं और ये दोनों कैपिटल अकाउंट से अलग बनाने हैं। तो जितनी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सारी करंट अकाउंट्स में होंगी, कैपिटल अकाउंट में नहीं होंगी। यही एक डिफरेंस है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हों तो सारी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट्स में करते हैं। जब कैपिटल्स आर फिक्स्ड सो वी डोंट हैव टू टच देम। बाद में जब क्लोज करने बंद करने तब इनको बंद करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो सारी एडजस्टमेंट ये जो 3 करंट अकाउंट्स हैं इनमें करेंगे। गॉट इट? दिस इज द क्वेश्चन बिफोर यू, दिस इज द प्रॉब्लम बिफोर यू। इट्स ए वेरी गुड प्रॉब्लम। और ऐसे 2-4 क्वेश्चन आपने जरूर कर लेने हैं ताकि शायद एग्जामिनर 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनर में ऐसा क्वेश्चन दे दे। मुश्किल कुछ नहीं होता, एक बार हाथ से निकल जाए देन इट इज वेरी सिंपल। नाउ लेट अस डू दिस प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हियर इज a position. I have realization of properly ruled. I have cash account also and I have capital accounts. तीनों के, सोनू, प्रीति और नीतू। सोनू, प्रीति और नीतू ये करंट अकाउंट्स भी तीनों के हैं। कैपिटल अकाउंट हमने देखो छोटे बनाए हैं क्योंकि इसमें कोई खास एंट्री आनी नहीं, सारी इसमें आनी है। तो ये करंट अकाउंट्स हैं सोनू, प्रीति और नीति। अब हम सबसे पहले क्या करना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू फॉलो हाउ आई डू दिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल वैसे कीजिए जैसे हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो आपने सारी बैलेंस शीट्स की आइटम, जितनी बैलेंस शीट में आइटम है, ये सारी बैलेंस शीट, सारे एसेट्स और सारे ये इधर लायबिलिटीज और कैपिटल, यहां से सारे उठा करके इधर ले आओ। पहला काम ये करना है। तो हम इनको सबको इधर लाते हैं। सबसे पहले है ये साइड लेते हैं, कैपिटल 70, 50, 30। ये कैपिटल्स उठा लिए यहां से 70, 50, 30। ये हमने इधर लिख दिए 70, 50 और ये 30।
इधर लिख देना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों के कैपिटल आ गए। इसी तरह तीनों के करंट अकाउंट भी लिख लीजिए। सोनू और प्रीति के क्रेडिट है 5,000 एंड 7,000, 5,000 एंड 7,000। और इसका नहीं है, इसका डेबिट है। ये डेबिट कितना है? 8,000 का। इसको हम इधर लिख देते हैं डेबिट साइड में, और इधर भी लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसके सामने भी लिखेंगे बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 8,000। इसके बाद आए ये करंट अकाउंट्स खत्म हो गए, ये आ गया, ये आ गया, ये सारी लिखी गई। अब आया वर्कर्स कंपनसेशन फंड, देयर इज नो क्लेम, और ये हमने इन करंट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देना है क्योंकि क्लेम कोई नहीं। वर्कर्स कंपनसेशन फंड ये कितना है? ये है 10,000 का। 10,000 और उनकी रेशियो है हमारे पास 7:1। 7:1 में ये हो जाएगा 7,000 और ये हो जाएगा 2,000, और नीतू के क्रेडिट में चले जाएगा 1,000। ये हमने वर्कर्स कंपनसेशन। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये रियलाइजेशन अकाउंट में इधर लिखते हैं हम बाय क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने के हैं? ये हैं 8,000 के। 8,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो देखिए सारी लायबिलिटी साइड हमने रिकॉर्ड कर ली इधर। इसके बाद एसेट्स हैं बिल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक और डेटर्स। इनको इधर ले आइए। टू बिल्डिंग्स, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। टू स्टॉक एंड टू डेटर्स। ये सारे इधर ले आए। ये है, वी हैव 70,000, 30,000, 40,000 एंड 22,000। ये है 70,000 बिल्डिंग्स। इन्वेस्टमेंट्स है हमारे पास 30,000 एंड स्टॉक इज 40,000। और इसके बाद है डेटर्स हमें 22 लिखने हैं। ये दो जो हैं ये हम इस साइड पे लिखेंगे। ये आपको पहले भी पता है और हम फिर बता रहे हैं आपको, ध्यान रखना। नेट फिगर नहीं लिखनी, इधर इमीडिएटली इधर लिख देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने की है? ये 2,000 की इधर लिख देते हैं। तो अब हमारे पास देखो बिल्डिंग ये सारे आ गए और ये भी हो गया, ये भी। अब रह गया कैश इन हैंड 12,000। इसके लिए कैश अकाउंट बना हुआ है, इसमें टू बैलेंस BD 12,000 लिख दो बस। ये हो गया। और कौन सा बचा? ये जो है करंट, ये हमने पहले लिख दिया है। ये देखो इधर लिख दिया था हमने, यहाँ पर 8,000 का इसका डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट में लिख दिया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव नोटेड इट in the realization account and cash account and current accounts and capital accounts, all these items. There should be no item left in the balance sheet. ये देख लेना, अगर कोई बात छोड़ गए आप लिखने से तो ये गलत हो जाएगा। That is my way of doing it and I want you to follow this. कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल क्वेश्चन स्मूथ चलेगा, आंसर आपका ठीक आएगा। अब आगे देखिए, आफ्टर यू हैव नोटेड इट डाउन, यहां लिख लिया, तो अब बच्चों आपने ये करनी है। बैलेंस शीट की तरफ हम नहीं देखना, हमें ये एक एक करके लेनी है। एंड बी केयरफुल, एक एडजस्टमेंट लेनी है, डबल एंट्री करनी उसकी, किसी की भी एक एंट्री नहीं होगी। आप नोट करना। अब सबसे पहले हम लेते हैं द रिजॉल्व फर्म और बिल्डिंग्स 75,000 की बेच दी।
बिल्डिंग्स कितने की बेच दी? 75,000 की। ये बिल्डिंग बिक रही है। यहां हम लिखते हैं बाय कैश अकाउंट, इसमें लिखते हैं बिल्डिंग्स। ये 75,000 की बेच दी। फिर इसके बाद बिल्डिंग्स थी। बिल्डिंग के बाद है इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय सोनू फॉर 18,000। ये बिल्डिंग तो बिक गई। अब इन्वेस्टमेंट 30,000 की है, ये इन्वेस्टमेंट्स सोनू ने ले ली। इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय सोनू। चलो इसको हम एक करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय सोनू, इसको हम